جان وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ ای سی سی نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ 1 فروری سے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ گھریلو کمرشل فرٹیلائزر CNG سیکٹر کے لیے گیس مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ ای سی سی نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ 1 فروری سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ گھریلو کمرشل فرٹیلائزر CNG سیکٹر کے لیے گیس مہنگی کرنے کی منظوری، کھاد کارخانوں کے لیے یکساں گیس ٹیرف کی منظوری، مسابقتی کمیشن کو کھاد کی قیمتوں میں ناجائز منافع خوری کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں الیکشن ختم، ریلیف کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ غریب عوام پر گیس کے بلوں کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ گیس کے بھاری بلوں نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دیں۔ کھڑیاں والا کے علاقے مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ فیصل آباد کے علاقہ کھوڑیاں والا میں گیس کے بھاری بلوں نے صارفین کی ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ تنخواہ سے زیادہ بل آنے پر اہل علاقہ سراپا احتجاج، حکومتی ریلیف کے دعووں کا رونا رونے لگے۔ گیس کا بل 50,000 سے 1 لاکھ تک بھیجا گیا۔ مکینوں کی دہائی، کہا محنت کش لوگ ہیں، جتنا کماتے ہیں اس سے بمشکل گھر کا چولہا چلتا ہے، بل ادا کریں یا 2 وقت کی روٹی کھائیں۔ سانو آیا بھی ساڈا کماਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰੀਏ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ? ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਦਿਲ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। بچوں کی فیس ادا کرتے ہیں تو محکمے کے افسر گھر کا میٹر کاٹنے آ جاتے ہیں۔ خواتین بھی بل بلا اٹھیں، بولی روزانہ کما کر کھانے والے ہیں، 1 لاکھ بل کیسے ادا کریں؟ سیاسی جماعتوں کو غریب سے نہیں صرف ووٹ سے غرض ہے، کامیاب امیدوار جیتنے کے بعد نہیں پوچھتا۔ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਘੱਲਣ ਡਏ ਆ, ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਈਏ? ਮਤਾਲਬਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ کہ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ کہ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ؟ علاقہ مکین کہتے ہیں گیس کے بلوں میں ریلیف نہ ملا تو گھر چلانا ناممکن ہو جائے گا۔ اعلیٰ حکام ریلیف فراہمی کے لیے اقدامات کرے۔ کیمرامین عرفان کے ساتھ علی رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ جنگ میں گیس لوڈ شیڈنگ اور پریشر کی کمی کا مسئلہ برقرار، بھاری بلوں نے صارفین کی زندگی کو اجیرن کر دیا۔ شہری ہوٹلوں سے مہنگا کھانا خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ حکومت گیس لوڈ شیڈنگ ختم کرنے میں ناکام، مگر صارفین کو بھاری بل بھیجنا نہ بھولی۔ ایک طرف LPG کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں تو دوسری طرف مہنگی گیس نے غریب شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ بھاری بلوں پر صارفین پھٹ پڑے۔ تو یہ بات ہے کہ گیس آ نہیں رہی، ٹھیک ہے، اوپر سے جو بل آیا ہے وہ بہت زیادہ آیا ہے۔ مطلب یہی بل اگر ہم لینا لاسٹ ایئر ہمارا بل تھا تقریباً 5,000 5,500 جو 28,000 آیا ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ گیس بھی کم آ رہی ہے، پریشر بھی کم ہے، اس کے باوجود اتنا بل آ رہا ہے۔ 400-500 روپے کماتا ہوں، بل میرا 10,000 کا ہے، اوپر سے بجلی کا بل۔ اب میں کیسے دوں، کیسے اتاروں بل؟ کس سے لوں جا کے؟ کھانا پکاؤں یا بچوں کو کھلاؤں؟ ہوٹل سے کیسے لوں کھانا جا کر؟ گھریلو صارفین کے شکوے شکایات بولے، سوئی گیس نہ ہونے کے باعث LPG بھروانی پڑتی ہے۔ غریب آدمی کا بجٹ پہلے ہی نہیں، اب رہی صحیح کسر بھاری بلوں نے نکال دی۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ سوئی گیس تو سارا دن آتی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اگر آتی ہے تو 2 گھنٹے آتی ہے، اور پورے مہینے کا جو بل جہاں پہ 200-300 آتا تھا، ہمیں 500 حد 500 آتا تھا، وہاں پہ بل 10-10 ہزار پہ آ رہا بل، تو ہم کہاں جائیں؟ مہنگائی سے تنگ عوام بھاری بھرکم بل ادا کرنے سے قاصر، حکومت سے ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ جنگ کے سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی کمی کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ ڈسٹرکٹ اسپتال کے ہیپاٹائٹس کلینک میں ادویات نایاب، غریب مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔ جنگ کے سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کا بحران سر اٹھانے لگا۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال کے ہیپاٹائٹس کلینک میں ادویات کی شدید قلت، انتظامیہ ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے میں ناکام، مریض اور لواحقین ادویات کے لیے در بدر، مشکلات بڑھ گئیں۔ ہیپاٹائٹس کے 100 سے زائد مریض روزانہ خالی ہاتھ مایوس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ MS ڈاکٹر صدف نقوی کے مطابق الیکشن کی چھٹیوں کے باعث ادویات کی سپلائی میں مسئلہ آیا۔ ہیپاٹائٹس کی ادویات اور ویکسین آنے پر مریضوں کو فراہمی کا آغاز کر دیا ہے۔ پھیلنے کی بڑی وجہ عطائیت ہے، جو کہ کنٹرول نہیں ہے۔ بہت زیادہ لوگ عطائیت ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے میڈیسن لیتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، جو اسٹرلائز میڈیسن اویلیبل ہیں، کلینک چل رہا ہے، لیکن کلین میڈیسن لیٹ آنے کی وجہ یہ تھی کہ الیکشن کی وجہ سے آج سپلائی ہمیں تھوڑی لیٹ آئی ہے، اس لیے آج رش تھا ہاسپٹل میں، اور ڈیلی کی بنیاد پر 100 سے زیادہ پیشنٹ یہاں پہ دیکھے جا رہے ہیں۔ ہیپاٹائٹس B اور C کی اسکریننگ بھی ہو رہی ہے، ان کو میڈیسن بھی دی جا رہی ہے۔ مریضوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے اور سرکاری ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔
फैसला आबाद चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया और निजी सिक्योरिटी कंपनी की मिली भगत। कंपनी हुकूमत से 43,000 रुपये वसूल करके एहलकारों को सिर्फ 13,000 रुपये में टरखाने लगी। अस्पताल इंतजामिया और सिक्योरिटी कंपनी का सरकार को माहाना 34 लाख रुपए का टीका लगाने लगी। फैसलाबाद में निजी सिक्योरिटी कंपनी चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से गरीब सिक्योरिटी एहलकारों से खाने का नवाला छीनने लगी। हुकूमत की जानिब से टैक्सेस समेत फी सिक्योरिटी एहलकार 43,000 रुपए की अदायगी। चिल्ड्रन अस्पताल में प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी फास्ट 170 एहलकारों को हुकूमती अहकामात पर 32,000 रुपए माहाना अदा करने की बजाय सिर्फ 13,000 रुपए दे रही है। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी माहाना 34 लाख रुपए का टीका लगाने लगी। 8 घंटे ड्यूटी के 13,000 रुपए माहाना दिए जा रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकारों की दुहाई। मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए। तनख्वाह 13,500 8 घंटे जी। 1 साल हो गया 13,500 8 घंटे जी 13,500 जी। डीएमएस एडमिन चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर आसिफ विर कहते हैं सिक्योरिटी एहलकारों की शिकायत मसूल हो रही हैं। 6 माह से हुकूमत ने अदायगी नहीं की, जिसके सबब पैसे अदा नहीं कर सके। सिक्योरिटी कंपनी को हुकूमती अहकामात के मुताबिक तनख्वाह अकाउंट में भिजवाने की हिदायत की है। कंप्लेंट्स आई थी कि ये 13,000 रुपया पे कर रहे हैं लोगों को। हमने कंपनी से बात की थी क्योंकि हम 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं कि हम कंपनी को हॉस्पिटल की तरफ से पैसे नहीं दे सके जो उनका बनता था। तो उसके बाद उन्होंने लोगों को पे करना था, तो अब अकाउंट्स में वैसे भी पे जानी है और ऑलमोस्ट सबके अकाउंट ओपन हो चुके हैं। ठेकेदार प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी फास्ट के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया की जानिब से पैसों की अदम अदायगी से मसाइल पैदा हो रहे हैं। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। भवाना हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन इंतजामिया फ्लोर मिल्स की करोड़ों की नादाहिंदा निकली। भवाना में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत, 15 रोज से आटे की सप्लाई बंद हो चुकी। भवाना में सब्सिडाइज आटे के असूल के लिए शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आटा न मिलने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात। ओपन मार्केट में गंदम 5,800 रुपए फी मन तक फरोख्त होने लगी, जो गरीब की पहुंच से बाहर है। मजदूरों की दहाई का ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदने की सकत नहीं रखते। बेनजीर स्कीम के तहत 650 रुपए में मिलने वाला यूटिलिटी स्टोर से आटे का थैला भी दस्तयाब नहीं। आटा न मिलने की वजह से हमारे बच्चे भूखे सोने पर मजबूर हैं। आटा नहीं मिलता, गरीब बंदे न असी मजदूर हैं, मजदूर नु आटा ही नहीं मिले तो फायदा की। कम अज कम सप्लाई रोजाना होनी चाहिए यूटिलिटी स्टोर पे। आटा बुकना ही नहीं चाहिए। आटा तो क्यों बाकी यार शायद कोई देवे ना देवे, आटा होना चाहिए। कणक मांगी हो 5600-5800 दी माने, कौन बंदा लाए आटा। शहरियों के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज आटे की सप्लाई यकीनी बनाने का मुतालबा। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भवाना। महंगाई बढ़ती जाए, गरीब क्या मुख्तलिफ तबके की दुहाई। शहरियों की आमदन से अखराजात कई गुना बढ़ गए, मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर। फैसलाबाद में रिक्शा ड्राइवर्स ने सवारी न मिलने पर सर पकड़ लिए। महंगाई ने लोगों के ख्यालात तब्दील कर दिए। फैसलाबाद में शहरियों की सफरी तरजीहात बदलने लगी। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाने वाली तालबात और तलबा ने महंगे रक्षों का इस्तेमाल कम कर दिया। शहरियों में ऑटो रिक्शा की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रुझान बढ़ने लगा। नड़वाला चौक पर खड़े रिक्शा ड्राइवर परेशान, कहते हैं सवारी ने महंगाई की वजह से ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल कम कर दिया है। चिंची रिक्शा का किराया कम, जिसके बाद सवारी अपनी बचत देखती है। फैसलाबाद में रिक्शा ड्राइवर ने सवारी न मिलने पर सर पकड़ लिए। कहा आमदन से अखराजात कई गुना बढ़ चुके हैं। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर है। मुश्किल 5 से 600 कमा पाते हैं, इसमें से भी LPG का खर्चा निकालना पड़ता है। सवारी नहीं बहती, शाम को बिल्कुल 1500 लाए घर चल जाइदा, बच्चों का पूरा नहीं होंदा, लिहाजा किराया करूया नहीं सवारी भरदी, तो इस करके बंद रक्शे की थोड़ी वैल्यू की जाए। चिंगची की रक्शे की वजह असीं परेशान हाँ। सालम रक्शा आपकी सवारी ना होने के बराबर, बिल्कुल ना होने के बराबर है। सुबह 6 बजे आईदा, रात को 8-9 बजे तक 500, 600, 700, बाकी सारा खर्चा गैस का आ जाता। रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि जिस तरह ऑटो का इस्तेमाल कम हो रहा है, इससे ज़ाहिर होता है कि मुस्तकबिल में ऑटो रिक्शा न होने के बराबर रह जाएंगे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली, सिटी 41 फैसलाबाद। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग फैसलाबाद की कार्रवाई। स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। गैर कानूनी तरीके से लाया जाने वाला नॉन कस्टम पेड कपड़ा, सिगरेट, टायर, ममनुआ चाइना सॉल्ट, छालियाँ और दीगर अशिया पकड़ ली गई। जब्त किए गए सामान की मालियत 200 मिलियन रुपए से ज़ायद है। कस्टम्स एंटी स्मगलिंग फैसलाबाद की कार्रवाई स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। गैर कानूनी तरीके से लाया जाने वाला नॉन कस्टम पेड कपड़ा, सिगरेट, टायर, ममनुआ चाइना सॉल्ट, छालिया और दीगर एशिया पकड़ ली। जब्त किए गए सामान की मालियत 200 मिलियन रुपए से जायद है। नॉन कस्टम सामान पर 100 मिलियन रुपए से जायद ड्यूटी चोरी की गई। एक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया। 3 मुलजमान फरार। पकड़ा जाने वाला सामान ड्राई पोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। कस्टम एंटी स्मगलिंग हुकाम के मुताबिक कौमी खजाने को पहुंचाए जाने वाले नुकसान के अजाले के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। टैक्सेस और जुर्माने की अदम अदायगी पर सामान बहक सरकार जब्त करके नीलाम कर दिया जाएगा। हासिल होने वाली रकम कौमी खजाने में जमा होगी। कैमरा टीम के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद।
माल बनाओ पॉलिसी या फेस्को अमले की मन मर्जियां, ग्रीन मीटर्स के डिमांड नोटिस की कीमतों में रद्दोबदल का इंकशाफ। अमला 28,000 से 35,000 के ग्रीन मीटर्स के डिमांड नोटिस बनाने लगा। नेट मीटरिंग के ख्वाहिशमंद सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गईं। फेस्को अमला पैसे बटोरने लगा या मामला कुछ और। ग्रीन मीटर्स के डिमांड नोटिस की कीमतों में रद्दोबदल का इंकशाफ। बेशतर सब डिवीजन दफातर में ग्रीन मीटर्स के डिमांड नोटिस में फर्क। फेस्को अमला 28,000 से 35,000 के ग्रीन मीटर्स के डिमांड नोटिस बनाने लगा। डिमांड नोटिस में फर्क पर सार्फिन फट पड़े। बोले अमला ग्रीन मीटर्स डिमांड नोटिस में मन मर्जी कर रहा है। जी मैं ग्रीन मीटर लगवाने के लिए आया था, तो मेरे से पहले से 28,000 रुपये लिया था, तो मुझे कह रहे हैं 35,000 रुपये ग्रीन मीटर का दें। हम गरीब लोग हैं, हम कैसे इतने पैसे दे सकते हैं? भाईजान इसी तरह ये किसी कहीं से 28,000 ले जाए, कहीं से 35,000 ले चुकी है, लेकिन ये गरीब आवाम ये कैसे अदा कर सकती है? बराए मेहरबानी इसका एक रेट फिक्स किया जाए, कहीं 35 कहीं 28 है। हम गरीब आदमी हम अदा नहीं कर सकते। फेस्को हुकाम ने ग्रीन मीटर्स के डिमांड नोटिस में रद्दोबदल करने वाले अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कैमरामैन रामिश के साथ वैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में डाले जाने वाले वोटों की तादाद की अजब सूरत हाल है। 3 कौमी हलकों में वोट ज्यादा, सूबाई हलकों में वोट की तादाद कम निकली। उधर टोबा टेक सिंह में भी आम इंतखाबात का मरहला खत्म। रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों को फॉर्म 49 जारी कर दिए। में आम इंतखाबात में डाले जाने वोटों की तादाद की अजब सूरत हाल। 3 कौमी हलकों में वोट ज्यादा, सूबाई हलकों में वोट की तादाद कम निकली। फार्म 47 के मुताबिक हलकों में वोटों की तादाद में 988 वोटों का फर्क। 3 कौमी हलकों में मजमूई वोट 10,04,379, जबकि 7 सूबाई हलकों में 988 वोट की कमी के साथ 10,03,391 वोट कास्ट हुए। 988 वोट कहाँ गए, गुत्थी सुलझ न सकी। टोबा टेक सिंह में भी आम इंतखाबात का मरहला खत्म। रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों को फार्म 49 जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग मटेरियल जमा कराने की हिदायत कर दी। रिटर्निंग अफसरान पोलिंग मटेरियल का सामान मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द करेंगे। पोलिंग का हसास मवाद रीजनल इलेक्शन कमीशन ऑफिस भिजवा दिया जाएगा। हसास मवाद में वोटर लिस्टें और बैलेट पेपर्स शामिल हैं। इंतखाबात के 6 रोज बाद सिटी 41 की खबर पर म्यूनिसिपल कमेटी जड़ामाला हरकत में आ गई। मेन शाहराहों से सियासी बैनर्स और दीगर इंतखाबी तशहीरी मवाद हटाने का आगाज कर दिया गया। आम इंतखाबात का इनाकाद हुए 6 रोज हो गए, मगर चनेौट के सरकारी दफातर में मामूल के काम शुरू न हो सके। इंतखाबी सरगर्मियों के बायस गुज़िश्ता कई रोज से दफ्तरी अमूर तात्तुल का शिकार हैं। डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर्स की इलेक्शन ड्यूटी की वजह से गुज़िश्ता 15 रोज से तमाम सरकारी अमूर लटक गए। साइलिन बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। आम इंतखाबात के बाद तरक्याती स्कीमों पर आयद पाबंदी खत्म। लोकल गवर्नमेंट तरक्याती मंसूबों पर काम कर सकेगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की इजाजत से मामलात को मशरूत कर दिया गया। महकमा फंड्स के मुताबिक प्रपोजल की मंजूरी के बाद ही तरक्याती काम हो सकेंगे। जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 4 अफराद को धर लिया। 70,000 से ज्यादा के जुर्माने किए गए। जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का गिरा फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। 24 घंटों में 4 अफराद गिरफ्तार, 70,000 से जायद जुर्माने आए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 612 मुकामात पर छापे मारे। मुतअद्दिद दुकानदारों को प्राइस लिस्टें आवेजा न करने पर वार्निंग दी गई। चनेौट में पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ एक्शन। गोवाना में 2 खोया यूनिट्स पर छापा। फूड सेफ्टी टीमों ने 5 किलो बनास्पति घी, 200 लीटर नाकस दूध, भारी मिकदार में मिलावटी खोया तलब कर दिया। दुकानों को सील करके मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए गए। हुक्काम ने अवाम से खुराक से मुतल्लक शिकायत का इंदराज कराने की अपील की। गंदम की जहरीली गोलियों की गैर कानूनी फरोख्त। महकमा ज़राअत का गैर रजिस्टर्ड डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। रजिस्टर्ड डीलर्स को ही कवायदो ज़वाबित पर अमल करने की हिदायत कर दी। जहरीली गोलियों की गैर कानूनी फरोख्त पर संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। गोलियां सिर्फ पेस्टिसाइड्स लाइसेंस होल्डर्स ही फरोख्त कर सकते हैं। हुकाम के मुताबिक बगैर लाइसेंस जहरीली गोलियां फरोख्त करने वालों पर 1 लाख रुपए जुर्माना, 6 माह की कैद होगी। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत असगर शाहिद कहते हैं, जहरीली गोलियां 18 साल से कम और खवातीन को फरोख्त करना ममनू है। रजिस्टर्ड डीलर शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करके गोलियां फरोख्त करेंगे।